جو کمالات ہمارے مولا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں اذہان عالیہ میں ہوگی کہ اصحاب کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، مولائے متقیان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اور شروع بحث میں ایک چیلنج کرتے ہوئے، اور یقیناً آپ غور کریں گے کہ یہ چیلنج ایسا چیلنج ہے کہ جو بہت زیادہ قابل غور نہیں ہے، کہ آپ بہت دیر تک سوچیں تب سمجھ میں آئے، ایک دم سامنے کی بات، اور مولوی کے سلسلے میں یہ چیلنج ہے اس لیے کہ آخری وقت جو مولائے متقیان نے ضرورت لگنے کے بعد یہ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور مولائے کائنات کے بعد ابھی تک کسی نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا سوائے علی کے۔ صلوات بھیجا حضرات، اللہ کا سب کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بھی فضیلت دیا ہے لیکن ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، جناب نوح کو بھی فضیلت دیا ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، جناب زکریا کو بھی فضائل ملے ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، جناب موسیٰ کو بھی فضائل ملے ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، جناب الیاس کو بھی فضائل ملے ہیں ان کے فضائل اپنی جگہ پر، جناب ادریس کو بھی فضائل ملے ہیں ان کے فضائل اپنی جگہ پر۔ ساری باتیں عقلی طور پر ہے، کل قرآن کی آیت کو پڑھ کے پیش کیا تھا، آج عقلی طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مولا کو فضیلت دیا ہے وہ سب سے ہٹ کر کے ہے، وہ فضیلت اور کسی نبی یا ولی میں نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے کس طرح سے؟ اس لیے کہ یقیناً مولا کائنات کو بھی معجزہ ملا ہے اور بہت سے بڑے بڑے نبیوں کو بھی معجزہ ملا ہے، لیکن دونوں کے معجزے میں فرق کیا ہے کہ آدم بھی معجزہ لے کے آئے ہیں، نوح بھی معجزہ لے کے آئے ہیں، موسیٰ کو بھی معجزہ ملا ہے، عیسیٰ کو بھی معجزہ ملا ہے، الیاس کو بھی معجزہ ملا ہے، لیکن ان کا معجزہ کیا ہے؟ یقیناً جناب آدم دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت تک جب اپنی زندگی کو آگے بڑھا دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا کہ جہاں پر روتے تھے وہاں پر رونے کی وجہ سے سارے پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے، سارے جانور آگے بیٹھ جاتے تھے، ان کے ساتھ آہو بکا کرتے تھے۔ یہ آدم کا معجزہ ہے، یعنی آدم پہلے آئے ہیں، معجزہ بعد میں ملا ہے۔ اسی طرح سے جناب نوح ہے، جناب نوح کو بھی معجزہ دیا ہے، لیکن ایک مدت تک عمل کرنے کے بعد جب دیکھا کہ سدھار نہیں ہو رہا ہے تب کہا کہ کشتی بناؤ، کشتی کا معجزہ مل رہا ہے، لیکن نوح پہلے آئے ہیں، کشتی بعد میں بنانے کا حکم ہوا ہے۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت تک گزارنے کے بعد جب دیکھا کہ اب ضرورت ہے موسیٰ کو کہ موسیٰ اب تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ظالم کو مقابلہ ہے، ظالم سامنے ہے، زندیق سامنے ہے، خائن سامنے ہے، منکر سامنے ہے، مبتدی سامنے ہے، مستبد سامنے ہے، ظالم سامنے ہے، خود رائے سامنے ہے، مفسد سامنے ہے، لڑکوں کو مارنے والا، لڑکیوں کو ستانے والا، بیٹوں کو مارنے والا، نبیوں کو مارنے والا، شہروں پر حملہ کرنے والا، سب پھول مارنے والا، نبوت پر حملہ کرنے والا، رسالت پر حملہ کرنے والا، خدا پر حملہ کرنے والا۔ صلوات پہ جا بول رہا دیکھا کہ یقیناً اب ان کو بھی معجزے کی ضرورت ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ پیدا ہوئے ہو اور پیدا ہونے کے بعد اپنے صندوق کے بغل میں دیکھا ہو تو ایک عصا ساتھ میں آیا ہو، آسمان سے عصا آ گیا ہو، کہا نہیں، ایک مدت تک گزارنے کے بعد جب دیکھا موسیٰ کو ضرورت ہے تو عصا کا معجزہ دے دیا۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو بھی معجزہ مل رہا ہے، لیکن ایک مدت تک جب آپ نے سروے کر لیا دیکھا کہ شہر میں کافی لوگ مریض ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، اب ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آتے رہے ایک مدت کے بعد پیدا ہونے کے بعد معجزہ ملتا رہا، لیکن میرے مولا کا معجزہ سب سے الگ ہے۔ سارے نبی آئے ہیں، معجزہ بعد میں ملا ہے۔ علی پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کی دیوار پہلے مسکرا رہی ہے، علی بعد میں
गया। आप मुलाहिजा फरमाए कि यकीनन मौला कायनात को भी मौजूदा मिला है, नबियों को भी मौजूदा मिला है, लिहाजा और नबी से और वली से मौला कायनात के मौजूदात का और फदाइल का इस वजह से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता कि यकीनन सारे नबियों के लिए दुनिया में आने के बाद उन्होंने कस्ब किया है, मेहनत किया है, मशक्कत किया है, फदाइल के पीछे रहे हैं, शरफ के पीछे रहे हैं। एक मुद्दत के बाद एक फजीलत मिल गई। सारे नबियों को कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मेहनत करते जा रहे हैं, मशक्कत करते जा रहे हैं, तो एक फजीलत मिलती चली जा रही है, एक शरफ मिलता चला जा रहा है। लेकिन मेरे मौला के लिए जुमला नहीं आएगा कि मेरा मौला किसी फजीलत के पीछे दौड़ा हो कि ये मेहनत कर जाए तो ये फजीलत मिल जाए, ये शरफ हासिल करने के लिए ये मशक्कत कर लिया जाए। सारे नबी वो थे कि एक मुद्दत के बाद उनको फजीलत मिलती गई और फजीलत के पीछे जाते रहे कि मूसा पहले जाओ और जो है फिरौन के सामने कामयाबी हासिल करो तो ये फजीलत मिलेगी, ज़करिया पहले फला जगह पर जाओ, ये कामयाबी हासिल करो तो फजीलत मिलेगी, इदरीस पहले चरखे चहारों के ऊपर जाओ, ये फजीलत हासिल करो तो ये फजीलत मिलेगी। यानी सारे नबी यानी फजीलत के पीछे जाते रहे, एक मशक्कत करते रहे तो उनको फजीलत मिलती रही। लेकिन मेरे मौला पर लाखों सलाम हो कि किसी फजीलत के पीछे नहीं है, जहाँ पर है फजीलत वहीं पर आ रही है। चादर ततहीर में है, आए ततहीर ने तलाश कर दिया, खैबर में है, अरब ने तलाश कर लिया, आप रसूल के बगल में है, कलम में तलाश। एक सलवात भेजा आप जहाँ जहाँ पर मौलाए कायनात मौजूद है फजीलत वहीं पर आ रही है। मुबाहले में पीछे हैं, आए मुबाहले ना तलाश कर दिया। चादर ततहीर में चादर के नीचे हैं, आए ततहीर ने तलाश कर दिया। रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने में अगली सब में है, लेकिन फकीर ने सवाल किया और आए विलायत ने तलाश कर लिया कि अली कहाँ पर है। गदीर में बीच मजमे में रिसालत माब ने मिंबर पर जाने के बाद उठाया है, वहां पर आए बल्लिग ने तलाश कर दिया। 1.25 लाख के मजमे में एक अली के लिए आयत नाजिल हो रही। सलवात भेजे आप। बहरहाल ये चैलेंज रह न जाए इब्तिदाई कलाम में, इसकी तरफ इशारा कर दिया जाए कि आखिर सारे नबियों ने इबादत किया और बहुत अच्छी इबादत किया। सूरह साफात, सूरह सब, इसके अलावा और कुरान मजीद की सूरह है जिसमें बड़ी तारीफ की गई कि फला नबी ने ये मेहनत किया लिहाजा उनको नेमत अब कहा गया, फला नबी ने ये मेहनत किया लिहाजा जिनका रसूल फज़लना बातों में बात कहा गया। कि जितनी मेहनत करते गए, जितनी मशक्कत करते गए, नेकी करते गए, उस हिसाब से उनको फजीलत मिलती चली गई। लेकिन किसी नबी ने, किसी वली ने आखिर ये जुमला क्यों नहीं इस्तेमाल किया कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। कभी आपने और फरमाया यकीनन सारे नबियों को एक या दो फजीलत मिली है जो उजागर है, जिनका किताबों में जिक्र आया है। लेकिन मौलाए मुत्तकियान के लिए आखिर ये सारी नेकी, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है और सारी नेकियों पर जो भारी नेकी है, जिसको सबसे बड़ी नेकी कहा जाता है, शहजादी ने तारुफ कराया है कि अगर जो है साथ में नेकियों में सबसे बड़ी कोई नेकी है तो वो शहादत की नेकी है जो सब पर भारी है। नमाज के ऊपर शहादत है, रोजे के ऊपर शहादत है, इबादत के ऊपर शहादत है, इताअत के ऊपर शहादत है, अल्लाह की तस्बीह के ऊपर शहादत है, अल्लाह से कलाम करने के ऊपर शहादत है। यानी सारे फजाइल एक तरफ है, अल्लाह ताला के जो है दरमियान में शहादत पा लेना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो शहादत तो सबको मिली है। जनाबे मूसा भी शहीद होके गए हैं, जनाबे ईसा भी जलवे जहारों पर चले गए हैं, लेकिन एक शहादत के मर्तबे को उनको भी रखा जाएगा, उनको भी शहादत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आखिर अली के लिए
یہ کیوں ہے؟ موسیٰ نے کیوں اعلان نہیں کیا؟ عیسیٰ نے کیوں اعلان نہیں کیا؟ زکریا نے کیوں اعلان نہیں کیا؟ کسی نبی نے کیوں نہیں اعلان کیا؟ آخر علی کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری خوبیاں جب ایک جگہ پر جمع ہو جائے تبھی کوئی ایسا جملہ استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے ساری خوبیاں کیسے جمع ہو گئی؟ اس لیے کہ مولا متقیان کے لیے آپ غور فرمائیں کہ یقیناً پورے بدن کی فضیلت ہے، انسان کے پورے بدن کی فضیلت ہے، لیکن اس بدن میں سب سے اہم پیشانی ہوتی ہے، سب سے اہم پیشانی ہوتی ہے۔ پیشانی جو کہ اللہ کے سجدے میں جھکتی ہے، پیشانی خاک پر رکھی جاتی ہے، لہذا پورے بدن کی فضیلت ہے، لیکن سر کی فضیلت الگ ہے اور سر میں پیشانی کی فضیلت الگ ہے۔ اب اس کو دماغ میں رکھ لیجئے کہ مولا نے کیوں فرمایا، آدم نے کیوں نہیں فرمایا، نوح نے کیوں نہیں فرمایا کہ پورے بدن میں سب سے خاص فضیلت حاصل ہے پیشانی کو۔ اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں، ساری عبادت میں سب سے خاص عبادت نماز ہے کہ نماز کو معراج المومن کہا گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ پیشانی جو ہے علی کی ہے، اس پر ضربت لگنے والی ہے، سب سے بڑی نیکی موجود ہے۔ اس کے بعد نماز کے عالم میں لگنے والی ہے، نماز سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو ہے 12 مہینوں میں سب سے خاص مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں مل رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سب سے خاص فضیلت شب قدر کی ہے، شب قدر علی کو مل رہی ہے۔ پھر جو عبادتوں میں سب سے خاص سجدہ ہے، سجدہ علی کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد سارے فضائل کے بعد ایک فضیلت اور ہے کہ بہت سے لوگ سارے فضیلت پاتے ہیں لیکن شہادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب علی کے جو گرد پوری فضیلتیں آ گئی تو ایک فضیلت شہادت کی رہ گئی تھی، لہذا جیسے ہی تلوار مارا علی نے کہا یہ بھی فضیلت علی کو مل گئی ہے۔ فزت برب الکعبہ، یہ علی کے نصیب کا جملہ ہے، کسی نبی کے نہیں۔ ایک سلوات بھیجے آپ حضرات۔ یہ مولا کائنات کی خاص فضیلت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے اور مولا کائنات نے یہ جملہ دیا ہے۔ اور یوں تو دیکھا جائے مولا کائنات چونکہ یہ ایسی شبیں ہیں بالخصوص آج کی شب تک کہ مولا کائنات کے فضائل میں آپ کی شجاعت کے چھروکے بھی پیش کیے جاتے ہیں علی کی خاص فضیلتوں میں۔ اور یہ ایسی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی شجاعت کی بھی فضیلت دنیا میں پائی جاتی ہے، بہت سے نبیوں کو ملی ہے لیکن ان کو انتظار کرنا پڑا۔ آپ کہیں گے انتظار کیسا؟ اس لیے کہ یقیناً فضیلت شجاعت کی ملتی ہے لیکن یہ کہنے میں آتا ہے کم از کم 18 سال کا تو ہو جائے، 20 سال کا تو ہو جائے، 32 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، تب کہا جاتا ہے اب یہ 18 سال کا ہو گیا، اس میں شجاعت آ گئی ہے۔ یہ 25 سال کا ہو گیا، اس میں شجاعت آ گئی ہے۔ یہ 28 سال کا ہو گیا، اس میں شجاعت آ گئی ہے۔ لیکن علی کی شجاعت بھی سارے نبیوں سے الگ ہے۔ سارے نبیوں کو پیدا ہونے کے بعد انتظار کرنا پڑے گا کہ جوانی کے عالم میں پہنچے تو شجاعت ملے، لیکن علی پیدا ہونے کے بعد مولا متقیان کو 3 دن کی عمر ہے، رسالت مآب لے کے جا رہے ہیں، جناب ابو طالب پیچھے پیچھے ہے۔ جناب ابو طالب جیسے ہی آگے بڑھے ایک آواز آئی، ابو جہل کی آواز آئی، ابو طالب کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گھر پر نہیں لے جایا جاتا، پہلے کھلا میدان میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آزمائش کے لیے بھی کچھ چیزیں مکے میں رکھی گئی ہیں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی علی کو لے جایا ایک اژدہا بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اژدہا کا آنا تھا، علی 3 دن کے ہیں۔ جیسے ہی اژدہا کو دیکھا کلے اژدہا چیر کے بتایا کہ سارے نبیوں کو شجاعت 32 سال میں ملتی ہے، علی کو شجاعت 3 دن کی عمر میں ملتی ہے۔ یہ علی کی طاقت ہے، یہ علی کی ہیبت۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ علی کے خصوصیات خصائص امیر المومنین تھے، تھوڑے سے چھروکے میں پیش کر رہا ہوں۔ عالم اہل سنت کی کتاب ہے، انہوں نے میرا قرآن کی آیات ہے لیکن میں عقلی طور پر پیش کر رہا ہوں۔ علامہ نسائی کہ کل اشارہ کیا تھا، ان کی کتاب سے کچھ باتیں پیش کیا تھا۔ سیاہ ستہ کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں جن کو علامہ نسائی کہا جاتا ہے، کیا کیا فضائل پیش کیے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی پہلی فضیلت ہے
اور کل یہ بھی عرض کیا تھا اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ نبی اکرم نے جو ہے کسی نبی کے بارے میں تعریف نہیں کیا، لیکن جب علی نے جو ہے یہ کام کر دیا تو فوراً تعریف کیا. اور جملہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کیسی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ توریت علی پڑھ رہے ہیں، انجیل علی پڑھ رہے ہیں، زبور علی پڑھ رہے ہیں، قرآن علی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کی یہ قسمت کی بات ہے، آپ کے ناز کی بات ہے، لہٰذا لے کر کے جائیے گا. دوسرا جملہ، پہلا جملہ یہ کہ جب قرآن سنایا تو تعریف کر کے بتایا کہ علی تم نے ایسا پڑھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اور لیکن جب توریت پڑھا تو کہا موسیٰ سے بہتر پڑھا، انجیل پڑھا کہا عیسیٰ سے بہتر پڑھ رہے ہو. اس کے بعد آپ نے زبور پڑھا، کہا تھا آخر کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو آیت کتاب الگ تھی، زبان الگ تھی، موسیٰ کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی. لیکن اب جو ہے ایسا آیا ہے کہ کتاب اللہ بھی اوپر سے ہے، لسان اللہ بھی اوپر سے ہے. اب صاحب زبان سنا رہا ہے اور آپ کے ناز کی بات کیا ہے، آپ کے قسمت کی بات کیا ہے. اللہ اکبر. مولا کو سلام کہ مولا نے آتے ہی دو جملے کا اعلان کیا ہے، ایک آنے کے بعد فوراً کیا ہے، ایک جانے سے پہلے کیا ہے. اس لیے کہ رسالت مآب نے علی کو دیکھ کر ہی فرمایا تھا یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو کامیاب ہے اور تیرے شیعہ جو تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. ایک سلوات بھیجا اللہ کو آپ کا ذہن ابھی پہنچ رہا ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم نے کہا ہے تو تائید ہونا چاہیے. اب کیسے تائید کریں گے کہ نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ اے علی تیرا شیعہ کامیاب ہے یا آپ کامیاب ہیں، تو یہ دونوں کامیابیوں کا راز کیسے فاش ہو، کیسے اعلان ہو کہ دونوں کامیاب ہے. اس لیے کہ جو شیعہ ہیں وہ مومن ہیں، انہی کو مومن کہا جاتا ہے اور علی کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. اب روایت نے پڑھ کے سہارا دیا کہ جب جیسے ہی نبی نے آغوش میں علی کو دیا ہے، آسمانی کتابیں تو سنا دیا، جب قرآن سنانے لگے تو شروعات کیا قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. میں کہوں گا علی یہ عجیب بات ہے، آتے ہی مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، اب جانے لگے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا. خود تو رب کعبہ، میں خدا کی قسم آج کامیاب ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. پیدا ہونے کے بعد اتنی بڑی شجاعت مولا متقیان کی ایک تو رسالت مآب نے دکھایا، خانہ کعبہ نے علی کے شجاعت کو دکھایا. اس کے بعد جناب ابو طالب نے دکھایا. آپ کہیں گے باپ نے کیسے ظاہر کیا بیٹی کی شجاعت کو، ابو طالب نے کیسے ظاہر کیا؟ اس لیے کہ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر جو طاقت مولا نے دکھایا ہے. جیسے ہی جناب ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور تبلیغ آگے بڑھ رہی ہے، اب ان کی کوئی رکاوٹ رسالت مآب پر کام نہیں آ رہی، پتھر مار لیا، تانے دے دیے، تنگ کر دیا، کچرا ڈال دیا، سب کچھ کیا، لیکن رسول اللہ تبلیغ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قولوا لا الہ الا تفلحوا کہتے چلے جا رہے ہیں. تو آخر میں منصوبہ بنایا کہ ایسے تبلیغ نہیں رکنے والی ہے، ایسے کلمہ حق نہیں رکنے والا، کیا کیا جائے؟ لہذا کچھ بوڑھوں نے مل کر کے منصوبہ بنایا. اس میں ابو جہل آگے آگے، ابو لہب آگے آگے کہ یقیناً سب کچھ تو کر لیا، ساحر بھی کہہ دیا، جادوگر بھی کہہ دیا، تانا بھی دے دیا، تن بھی کر دیا، شیب ابو طالب میں بھی رکھ دیا، بائیکاٹ بھی کر دیا، کھانے کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے، شہر کے لحاظ سے رکاوٹ ڈال دی، ہر مصیبت ظاہری طور پر پیش کر دیا. لیکن یہ تو تبلیغ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہذا جتنے اوباش قسم کے لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے مکے کے، جو بہت ہی اوباش تھے، بہت ہی شرارتی تھے، آج جو 10 سال کے 12 سال کے لڑکے تھے ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ شخص جو دیوانہ ہے، جب یہ نکلے تو پیچھے سے پتھراؤ کرنا. رسالت مآب تبلیغ کرتے جاتے تھے، پیچھے سے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آپ کے اوپر کچرا ڈالتا تھا، کوئی آپ کو اذیت دیتا تھا. رسالت مآب آئے، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ جیسے چچا کو دیکھا آنکھ میں آنسو آ گیا. جناب ابو طالب نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے آج میں نکلا، شام تک تبلیغ کرتا رہا، بچے پتھراؤ کرتے رہے. جناب ابو طالب کو طیش آ گیا، آستین چڑھائی، فوراً ابو جہل کے گھر پہنچے، ابو لہب کے گھر
पहुंचे, अतबा और शैबा के घर पहुंचे, आस बिन वाइल के घर पहुंचे, जो बड़े बड़े सरदारान थे कुफारे कुरैश के, उनके घरों पर गए तो सबने मिलकर एक ही जवाब दिया जो कि मंसूबा बनाया था कि इसमें हम क्या करें, छोटे बच्चों ने ऐसा किया है, बच्चों को तो रोका नहीं जा सकता। जनाब अबू तालिब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद आए, अली को तैयार किया, बेटा देखो कल से रिसालत माब हमारा भतीजा जब तबलीग के लिए जाएगा तो तुम पीछे पीछे रहना और जैसा जो करे उसको वैसे ही जवाब देना, जैसा जो करे उसको वैसे ही जवाब देना। अली 10 साल के हैं, 10.5 साल के हैं, जैसे ही पीछे गए देखा कि रिसालत माब पर हमला हुआ, कुछ बच्चे इधर भाग रहे हैं, कोई ढेला मार रहा है, कोई खजूर फेंक रहा है। एक मरतबा जैसे ही खजूर की गुठली आई, अली ने हाथ पर रोका और रोकने के बाद अगर मार दिया, किसी के सीने में धर गई, किसी के पेशानी में धर गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की पसली। क्या सुन रहे हैं आप? एक सवाल भेजा है कि पैदा होते ही जो ताकत दिखाया है कि पत्थर की दीवार नहीं रोक पा रही, तो मक्के वाले क्या रोक पाएंगे, ये मदीने वाले क्या रोक पाएंगे, ये अबू जहल की औलाद क्या रोक पाएगी, ये अतबा और शैबा के कुनबे वाले क्या रोक पाएंगे। लिहाजा जिस पर भी वार कर दिया, अब यहीं से जो है बात समझना चाहिए कुरान ने कैसे समझाए कि अली के जो है खजूर की गुठली में इतना दम आ गया था कि हाथ पर पड़ गया तो हाथ टूट गया, चेहरे पर पड़ गया तो चेहरा मुड़ गया, सीने पर पड़ गया तो पसली टूट गई, पैर पर पड़ गया तो घुटना टूट गया, पेशानी पर पड़ गया तो पेशानी टूट गई। आखिर ये कैसे समझ में आएगा? एक सूरज ने समझाया कि आखिर वजह क्या है। सूरज ने बढ़ के बताया कि जब हाथी लेकर के अबरहा आया तो अल्लाह ताला ने बहुत कोई फौज नहीं भेजी, छोटे छोटे अदद भर यानी दाल बराबर जो है दाना भेजा, और एक अदद बराबर जिसके ऊपर भी गिर जाता था वो हाथी तबाह हो जाता था, अबरहा का लश्कर तबाह हो जाता था। जब अल्लाह के भेजे हुए एक दाल के बराबर दाने में इतनी ताकत है तो अल्लाह के भेजे हुए अली में क्या ताकत हो गई, अल्लाह में क्या ताकत होगी, अल्लाह में क्या ताकत है। ताकत के झरोखे हैं और यही वजह है कि छोटे थे लेकिन मार खा करके याद किया हुआ था। अली को देखते थे फौरन पहचान जाते थे, इसलिए कि मक्के में कई ऐसे जख्मी थे कि जो अली को देखते हुए फरार कर जाते थे। अरे इसी ने तो बचपन में मारा था, इसी ने तो मेरा हाथ मरोड़ा था, इसी ने तो जो मेरे पाँव को मारा था, इसी ने मेरे पेशानी को मारा था। लिहाजा तारीख का जुमला है कि जैसे ही अली ने अपनी थोड़ी सी और शुजाअत को आगे बढ़ाया, इसलिए कि नबी को इत्मीनान है कि जब पैदा होते ही अली ने अपनी ताकत दिखाई कि पैदा हो रहा है तो पत्थर की दीवार मुस्कुरा रही है, 3 दिन के हैं तो अल्लाह को जो है तो टुकड़े कर रहे हैं। अली के 10 साल की ताकत ये है कि मक्के के काफी बच्चों का हाथ तोड़ दिया है, पांव तोड़ दिया है, सीने में मार दिया है। लिहाजा अली को जो है अली पर इतना भरोसा है रिसालत पाक को कि कोई फौज नहीं जमा किया, मक्के में किसी और अपने चाहने वाले से नहीं कहा, बल्कि तन्हा अली को बिठाया और बिठाने के बाद कहते हैं कि मुझ पर वही आ गई है कि अब मैं मक्का छोड़ दूं। अली क्या तुम तैयार हो कि मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? इतना सुना था कि मौला ने कोई दूसरा जुमला नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि ऐ नबी अल्लाह ये बताइए क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? नबी खुदा ने कहा हाँ अली, आज अगर मेरे बिस्तर पर सो गए तो नबूवत की जान बच जाएगी। अब तारीख कहती है, मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि अली ने जैसे ही ये जुमला सुना, जहाँ खड़े हुए थे वहीं पर जो है अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और सजदा करने के बाद कहा शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। मुहद्दिस साहब कहते हैं ये पहला सजदा शुक्र है जो अली ने बुनियाद डाली है सजदा शुक्र। एक सलवात भेजा अल्लाह पर, ये पहला सजदा शुक्र है कि अली ने शुरुआत किया। पहले लोग खड़े खड़े ऐसे ही कहते थे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेशानी को खाक पर रख करके सजदा शुक्र अदा करना कि यकीनन ये इतनी मेरी उम्र हो गई
रही है, अब नबूवत के काम आ रही है, अब रसालत के काम। इसलिए कि अभी अली की उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ज्यादा 19 या 20 साल के हैं और 53 साल का नबी है, अपनी जगह पर सुला रहा है। जैसे ही मौलाए मुत्तकियान तैयार हुए, नबी खुदा ने भी शुक्र अदा किया और कहा कि अली यकीनन मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम पर इतना भरोसा है कि 2 अमानत मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एक अमानत ऐसी है जिसमें ज़बान नहीं है, दूसरी अमानत ऐसी है जिसमें ज़बान है। आप समझ रहे होंगे, इसलिए कि मक्के वाले बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन नबी अकरम ने अपनी हयात ऐसी पेश की थी कि अपनी अमानतों को ला करके नबी के पास रखाते थे। इसलिए कि अमीन है, सादिक है। लिहाजा अली से कहा कुछ अमानत तो ऐसी है जो घर में रखी हुई दिरहम है, दिनार है, पैसा है, गल्ला है, अनाज है, लिबास है, कुछ चीजें ऐसी है। और अली तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन तुम अमानत हाथ पर ले लोगे तो अमानत खुद गवाही देगी किसकी है, अमानत खुद गवाही देगी। लिहाजा नबी ने आधा पता नहीं बताया, नाम की लिस्ट नहीं थी किसकी है और जो अमानत रखा के गया है। पहली अमानत, उसके बाद जिसके पास जबान है वो अमानत। कहा कि देखो अली मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मदीने में दाखिल होने से पहले एक मकाम खुबा है, वहां पर मैं ठहरूंगा। मकाम खुबा मदीने से 3-4 किलोमीटर पहले एक देहात है, छोटा था, अब मदीने में शरीक हो गया। मैं वहां पर ठहरूंगा और अली तुम रुकना, सुबह उठने के बाद मक्के वालों को बुला करके अमानत उनको देना। उसके बाद जो जिंदा और बोलती अमानत हो मेरी बेटी फातिमा है, उनको संभाल करके लाना। अल्लाह ताला की अमानत है और मेरी अमानत है। जुमला रिसालत में आपका है कि फातिमा नहीं है, वदियतुल्लाह है, अल्लाह की अमानत है। अमानत और रसूलुल्लाह, तुम्हारे रसूल की अमानत है, इनको संभाल के लाना। अपनी माँ को संभाल के लाना, अपने कुनबे वाले पे 7 अफराद हैं, उनको संभाल के लाना। इसलिए कि नबी को मालूम है कि मैं किसके हवाले कर रहा हूँ। अब देखिए अली की जो तीसरी ताकत, 2 झरोखा पेश किया अली का शुजाअत का। अब तीसरा झरोखा ये है, अल्लाह पर बड़े इत्मीनान से सजदे शुक्र करने के बाद जैसे ही चादर में अली लेते हैं, पूरे मुकम्मल चादर तान लिया है। कभी अली सोए नहीं है, लेकिन आज सो रहे हैं और सो नहीं रहे हैं, बल्कि एक जवाब भी देना चाहते हैं। इसलिए कि अली इतनी मेहनत करते थे, इतना बेदार रहते थे कि एक फिरका कहने लगा था कि यकीनन जो कभी न सोए वही तो खुदा होता है। तो अली शबे हिजरत सो नहीं रहे हैं, बल्कि सो करके खुदाई भी बचा रहे हैं, रिसालत भी बचा रहे हैं। सो रहे तो बताना चाहते अल्लाह सोता नहीं है और बचा रहे हैं नबूवत की जिंदगी को। सलावत भेजा लिहाजा जैसे ही चादर को ताना, 40 तलवारें बाहर इंतजार में है कि जैसे ही शुभ नमूदार हो हम हमला करते मोहम्मद पर। मौलाए कायनात इत्मीनान से सो रहे हैं। ये ताकत का आलम है, ये शुजाअत का आलम। इसलिए कि थोड़ी भी बेचैनी हो जाए, मतलब जहाँ पर इंसान रहता है, अगर वहाँ ये ऐलान भी हो जाए कि डकैती होने वाली है, चोरी होने वाली है। हालांकि डकैती या चोरी के लिए बहुत पूरा काफिला नहीं आता है, 150 लोग नहीं आते हैं। एक महल्ले में अगर 250-300 लोग हैं तो 2-3 लोग भी अगर ऐलान करने आने वाले तो बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। यहाँ अली को मालूम है कि 40 तलवारें बाहर हैं और बड़े बड़े कबीले जो है उनके सरदारान के नौजवान बच्चों को चुना गया है, 38 और 40 साल के अफराद को चुना गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अली बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। और जैसे ही उजाला हुआ, देखा कि एक ने आकर के हिम्मत करके पायती आकर के जैसे ही चादर खींचना था, अली का चेहरा जैसे ही दिखाई पड़ा, तारीख कहती है उछल करके कहीं तो बहुत दूर बचा के खड़ा हुआ। अली ने गौर से देखा तो अबू जहल है। अबू जहल ने हिम्मत तो कर लिया, अली की चादर को तो छू लिया, लेकिन बड़ी दूर खड़ा हो गया। मैं कहूँगा अबू जहल आज इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है? तो हो सकता जवाब में तुम्हें मालूम नहीं है, अली जब 3 दिन की उम्र में तमाचा लगाते हैं तो ये हालत है। अब तो अली शबाब पर आ गए हैं, अब तो अली जवानी की हालत है, अब तो अली 20 साल में हो। अल्लाह अकबर, अब तो शबाब का आलम है। लिहाजा बड़ी तेजी के साथ, जिसको कहा जाए अरबी में बतौरे कहकरी, बड़ी तेजी के साथ पीछे हटा और तकछकी बांधे हुए हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब कलाम करे तो कैसे करे। नबी समझ के आया था, रसूल मोहम्मद समझ के आया था, लेकिन देखा उनकी जगह पर अली है। लिहाजा बड़ी देर तक सोचता रहा कि अब करें तो कलाम क्या करें, आखिर कहाँ से शुरुआत करें। इसलिए कि पित्ता पानी हो गया है,
जानते हो अल्लाह पर ऐसे आलम में 40 तलवारें सर पर हो, पूरे मक्के की शुजाअत एक जगह पर जमा हो गई हो, जितने सरदाराने कबीला है उन्होंने अपने जवानों को तलवार देकर के भेजा है, लेकिन ऐसे आलम में मेरे मौला ने इतने इत्मीनान से जवाब दिया। और जवाब कैसे दे रहे हैं? इसलिए कि अगर जो है यहाँ पर जवाब में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो दो चीजें फौरन मुसीबत आ जाएगी। अगर कहते कि हाँ जानता हूँ तो रिसालत पर खतरा, अगर कहते नहीं जानता हूं तो इमामत का खतरा। लिहाजा अली ने तीसरा रास्ता निकाला, इसलिए कि अगर सच बोल देंगे हाँ जानता हूं तो रिसालत खतरे में, अभी रिसालत माफ रास्ते में है। अगर कहते कि माज़अल्लाह नहीं जानता हूं तो इमामत झूठ नहीं बोलती, इमाम मासूम कभी झूठ जो है नहीं बोलता। लिहाजा तीसरा रास्ता निकाला कि क्या तुम मोहम्मद को मेरे हवाले कर गए थे, क्या तुम मेरे मोहम्मद, यानी यहाँ पर अली से जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तो शुजाअत का मुजाहरा है और दूसरा इत्मीनान का मुजाहरा है और तीसरे ये कि मौलाए कायनात अपने भाई का जवाब देना चाहते हैं, रिसालत माफ का जवाब देना। आपका जहन पहुंच गया होगा कि 70 तलवारों के दरमियान में जब अली का दिमाग नहीं खराब हुआ तो उस्ताद का दिमाग हल्के से बुखार में कैसे खराब हो जाएगा कि कलम तबाक भी नहीं दिया, कह दिया कि बुखार के आलम में है, बुखार के आलम में। सलवात भेजा से जवाब दिया है। रिसालत माफ के दिमाग पर जो हमला होने वाला है कि देखो जब शागिर्द ऐसा है तो उस्ताद कैसा होगा। जब अली की ये हालत है, बड़े इत्मीनान से मौला मुत्तकियान बैठे, बैठने के बाद आपने आवाज लगाई कि जिसकी जिसकी अमानत है आकर के ले जाए। और देखो ये भी ऐलान, इसलिए कि ऐसा इंसान रिसालत माफ चाह चुके हैं, बहुत ज्यादा खतरा है, हम मक्के में बहुत ज्यादा चाहने वाले नहीं है, अली तन्हा है, 7 औरतों को साथ में लेकर के जाना है। लेकिन मौला कायनात ने ऐलान किया है, इसी को मर्दानगी कहा जाता है, इसी को शुजाअत कहा जाता है। क्या जुमला फरमाया आपको मालूम है? सुबह का वक्त है, अभी उजाला निकल रहा है, मौला मुत्तकियान ने ऐलान किया कि जो बाहर खड़े हुए हैं 40 तलवारियों को सुन ले कि मेरा भाई जा चुका है और उसकी अमानत जो है उन्होंने अमानत मेरे पास रखवाया। मक्के में ऐलान कर दे जिनकी जिनकी अमानत है दोपहर तक आके ले ले, मैं निस्फुल नहार में दोपहर के वक्त निकलूंगा, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कि दोपहर में वक्त में निकलना है। लोग जो छिप करके निकलते हैं, जनाब मूसा ने एक को मार दिया था, सलवात भेजा जनाबे मूसा ने एक को मार दिया था तो रात की तारीकी में छिप छिपा करके निकले कि कहीं कोई खेल न दे, कोई खतरा न हो जाए। लेकिन अली ऐलान कर रहे हैं। अच्छा ऐलान क्यों कर रहे हैं? इसलिए अली को भी मालूम है कि जो ये 40 तलवार लेकर के घेरे हुए हैं, इन्होंने तो मेरी शुजाअत देख लिया है, इनकी हिम्मत पड़ेगी नहीं। और जब तक ये मंसूबा बनाएंगे कि अब क्या किया जाए, इतने में मैं जो है सवार होकर के निकल जाऊंगा और ये मेरे पीछे लगे रहे। बहरहाल आपने दोपहर तक अमानतें अदा किया, बड़े इत्मीनान से नमाज अदा किया, नमाज अदा करने के बाद सवारियां बनाई, महमिनों में तैयार किया, नाका तैयार किया, एक तरफ को शहजादी को बिठाया, एक नाके पर माँ को बिठाया, पूरे जो है सरदान बने, महफिल जो है महमिनों को लेकर के आगे चल रहे हैं। अब ये जो 40 तलवार वाले थे, अबू जहल ने देखा इनमें तो किसी की हिम्मत पड़ नहीं रही है कि अली का पीछा करे, लिहाजा मक्के के आखिरी हिस्से में गया। जिनको देखा कि अली को ज्यादा जानते नहीं, उनमें से जवानों को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा कि अभी अली ने जो मक्का छोड़ा नहीं होगा, अभी पहुंचने वाले होंगे, तुम जाके आगे से खेल लो। उसमें एक ऐसा पहलवान था कि जिसको खरीद के लाया गया था, जो जल्दी तैयार नहीं होता था। जैसे ही मौला मुत्तकियान ने देखा, इसलिए कि रिसालत माफ मकाम ख़ुबा पर ठहरे हुए हैं, अपने एक सहाबी को भेजा जिसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद बाकरी नाम है, उसको भेजा कि मेरा भाई इतनी देर हो गई अभी आया नहीं, जाके पता लगाओ, मक्के की सरहद पे जाओ। जैसे ही मक्के के सरहद पे पहुंचे तो क्या देखा कि अली इत्मीनान से महमिलों को उतारे हुए आराम कर रहे हैं, इसलिए कि मुसलसल कई घंटा अली को चलते हुए हो गया था। लिहाजा उसने कान में आगे कहा कि ऐसा खतरा बहुत है, तारीकी छाने वाली है, ऐ अली अब यहाँ से चला जाए। जैसे ही मौला कायनात ने तैयारी किया, इतने में देखा कि धूल उड़ रही है, गर्द उड़ रही है। उसने कान में कहा कि ये तो मक्के के बड़े खबीस
बड़े पलीद और नौजवान लोग हैं जो आकर के फौरन सब खून मार देते हैं, हमला कर देते। मौला ने मुस्कुरा के कहा कि तुम घबराओ मत, अब अली की ताकत देखो, अली की कुव्वत देखो। बहरहाल जैसे ही आकर के रास्ता घेरा, अली ने नजर दौड़ाया कि इनमें सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन है, सबसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है। जो लोगों ने रास्ता रोका था उसमें एक पहलवान सबसे हावी नजर आ रहा था। अली ने सबको छोड़ दिया और करीब जाकर के ऐसा उसको मारा कि लगता आधा थक गया। अब उसके जाने वाले उछल के देख रहे ये कहाँ धदा जा रहा है, ये कहाँ धदा चला जा रहा है, इस पर क्या कर सलवात भेजा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसको मारा वहीं पर थक गया और आधे आध होकर के थोड़ी देर के बाद गिर गया। बकिया लोग इतनी तेजी के साथ भागे कि पीछे भी मुड़ करके देखना नसीब नहीं हुआ। जो रसूल की तरफ से आया था सहाबी, वो डरा चला जाना था कि अली ठीक है आपने एक को मार दिया, आपने डरा दिया, लेकिन अब तो जल्दी कीजिए। लेकिन अब अली को देखा कि मौलाए कायनात ने मुसल्ला बिछा दिया और बड़े सुकून से सजदे शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है जो तूने कुव्वत दिया है, जो तूने ताकत दिया है। वो घबराया जा रहा है, अली नमाज पर नमाज पढ़ते चले जा रहे। सलवात भेजा। इसलिए कि यकीनन ऐसे शब्द है कि सिर्फ फज़ाइल मौला कायनात पूरी दुनिया में चल रहा है, सभी पेश कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ मैं इशारा करके आगे बढ़ना हो और सभी जानते थे चाहे जितने ही बड़े दुश्मन क्यों ना हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह की भी आदत थी कि थोड़ा भी फज़ाइल पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ जिक्र होता था, उसमें फौरन मौला के फज़ाइल आते थे। और ये खुद इकरार किया है साहब ने। इकरार कैसे किया? इसलिए कि रसूलुल्लाह की जब आँख बंद हो गई तो एक आने वाले ने जो है आकर के ये जुमला फरमाया, कहा कि तुम्हारे रसूल ने एक वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करवाने के लिए आया हूँ। पहला लोग मसनद तो बैठे हुए थे, कहा क्या वादा किया था? कहा तबलीग करने के लिए गए थे, रास्ते में उनको भूख लगी, मैंने देखा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, तो रसूलुल्लाह ने कहा कुछ नहीं, खजूर तो है, अरब में खजूर रखी जाती है। पहले उसने कहा हाँ हुजूर खजूर है। 3 मुश्त खजूर ला करके दिया, मुट्ठी भर भर करके। रिसालत माम ने खाया, कुछ अचार को खिलाया। जैसे ही खजूरें खत्म हो गई, कहा तुम मदीने आना तो ये तेरी खजूर जो मैंने खाई है इसको मैं अदा करूंगा। पहला रिसालत माम ये कहे कि वापस आए, आप दुनिया से चले गए, पर्दा कर लिया, शहीद हो गए। जैसे ही शहादत के बाद वो वापस आया, पता चला रसूल तो नहीं है, फला साहब उनकी मसनद पर बैठे हुए हैं। पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि रसूल ने मेरी 3 मुश्त खजूरें खाई थी, मुझे बदला चाहिए। अब वो देखने लगे, कभी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देख रहे हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह का कितना बड़ा हाथ है ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दे भी दिया जाए तो कितनी जो है कहीं कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो जाए। लिहाजा जनाब सलमान को बुलाया। सलमान ने कहा कि सलमान अली को बुला करके लाओ। मौलाए कायनात आ गए। मौलाए कायनात ने देखते ही मुस्कुरा करके 3 मुश्त खजूर दे दिया, वो चला गया। एक साहब ने सवाल कर लिया कि अगर आप अपने हाथ से दे देते तो इसमें फर्क क्या होता? एक मरतबा दोनों कानों को बंद करके मुस्कुराया और मुस्कुरा करके मसनद पर बैठने वाला कहता है मैंने इसलिए दिया कि गार के अंदर जब बात हो रही थी तो इधर उधर की बात नहीं, अली की बात हो रही थी। और एक मरतबा बात करते करते रसूल ने अपनी मुट्ठी उठाई, कहा कि देख ले मेरी मुझको, जो मेरी मुट्ठी है वही अली की मुट्ठी है। रिसालत माफ फदाइल पर फदाइल पढ़ रहे हैं और मालूम भी है। और फिर एक राज की बात, यकीनन शबाए कदर में बड़े राज की बातें आती है, कल भी कई राज की बातें आपने समाज फरमाई। आज फिर एक बात आ गई है कि वहां पर जब रिसालत माफ मेराज पर पहुंचे हैं और मेराज पर पहुंचने के बाद एक मकाम तक जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया। लो दना तो अनमोलतन फहदरक तो, अगर सरे अंगूश भी में बढ़ जाओ तो मेरे बालों पर जला दिए जाएंगे। और वहां पर बात हो रही है तो अली से बात हो रही है, लहजा अली का है, कलाम अली का है, तर्जमान अली है,
वहाँ पर सूरत अली है, अली मौला कायनात बैठे हुए हैं। तो ये कुरान से कैसे साबित किया जाए? इसलिए कि अल्लाह कहीं पर बैठ जाए तो अल्लाह नहीं है, अल्लाह किसी जहद पे आ जाए तो अल्लाह नहीं है। उसकी कुदरत कामिला के बिना पर कहीं पर भी जो है अपनी कुदरत को जाहिर कर सकता है। तो जिब्राइल को तो एक जगह पर रोक दिया कि जिब्राइल आगे बढ़ नहीं सकते और अल्लाह आ नहीं सकता। अब ये जो मेराज में हम कहते हैं कि अली से हम कलाम थे, अली से बात हो रही थी और रिसालत माब से पूछा भी गया, सवाल किया गया कि ये बताइए कि आपसे पहले मेराज पर अली को क्यों बुला लिया गया, आखिर वजह क्या है? कहा कि वही के जरिए से मेरे परवरदिगार ने मुझे इत्तला दिया कि यकीनन मेहमानी को मैंने बुलाया था मेरे हबीब, मैंने देखा पूरी कायनात में जिसकी मोहब्बत तेरे दिल में सबसे ज्यादा है उसको मैंने मेहराज पर पहले बुला लिया, लिहाजा अली को बुलाया। अब कहेंगे कुरान से कैसे साबित है? इसलिए कि जिब्राइल जब हट गए तो कोई मलक नहीं जा सकता, जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, जब जिब्राइल पीछे हट गए तो कौन मलक जा सकता है? और अल्लाह ताला आ नहीं सकता, उसका कोई मकान नहीं है। तो कौन था जो बात कर रहा था? नबी अकरम थे। अब कुरान मजीद ने बढ़ करके जो जवाब दिया, अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाइश करते हुए बहुत ज्यादा अदब से बात करते हुए कहता है, माँ वक्ता का रब का वमा कला, ऐ हबीब तेरी शान ये है कि तेरे परवरदिगार ने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर मेराज में अली नहीं बैठे तो बताओ कौन बैठा है? अल्लाह आ नहीं सकता है, जिब्राइल पीछे रह गए हैं और कोई बात कर रहा। सलवात भेजे समेट रहा हूँ। यकीनन कल थोड़ा सा बहस आगे बढ़ गई थी, इसी को भरोसा करते हुए पढ़ा था। सलवात भेजे अल्लाहु अकबर। क्या फदाइल हैं, क्या कमालात है। मस्जिद कुबा इंशाअल्लाह आप जाएंगे ज़ियारत करेंगे कि मौला कायनात जैसे ही पहुंचे हैं, पहले तो नबी अकरम लिपट करके गिरिया करने लगे, रोने लगे, आंसू बहाया। उसके बाद नबी अकरम ने तैयारी किया कि अब चला जाए। जैसे ही नबी अकरम तैयार हुए, मौला अली ने कहा नहीं थोड़ा रुकिए, आप जो मदीने में दाखिल होना चाहते थे एक निशानी बनना चाहिए। नबी ने कहा कि अली कौन सी निशानी बनाना चाहते हो? कहा कि एक ऐसी मस्जिद बन जाए कि जिससे पता चले कि नबी अकरम मदीने में आने से पहले कहाँ पर मकाम किया था, कहाँ पर ठहरे थे नबी। यानी इससे पता चला कि दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं सबसे पहली मस्जिद का मशवरा देने वाला अली है, सबसे पहली मस्जिद बनाने वाले मौला कायनात हैं। बहरहाल फदाइल का समंदर है और ऐसे फदाइल हैं कि सिर्फ आप नहीं पसंद कर रहे हैं, आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, बल्कि नबी अकरम के लिए है कि अली के फदाइल को सुनना चाहते हैं। अली के फदाइल को मेरा शुजात पर बात आ गई तो फिर एक शुजात का जुमला कि खैबर में जब नबी अकरम की शादी हो गई सफिया से, और सफिया सामने आके बैठी हैं, जैसे ही अपने आंचल को हटाया है, घूंघट को हटाया है, तो पहला सवाल नबी अकरम ने किया। चूंकि जनाब सफिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जैसे किला फतह हुआ तो नबी अकरम के अब्द में आ गई, और अब्द होने के बाद निकाह में आने के बाद नबी अकरम कैसे चाहते, दिली ख्वाहिश क्या है कि मेरे भाई का जिक्र रात में भी हो, हजरे हुरूसी में भी हो, जो है कमरे के तन्हाई में भी हो। यकीनन ये नबी के दिल की ख्वाहिश है। लिहाजा जैसे ही अपना पर्दा हटाया, जैसे ही आंचल हटाया, जैसे दुपट्टा हटाया, नबी अकरम ने मुस्कुरा के पूछा कि सफिया ये बताओ कि पूरे जिस्म में पेशानी से लेकर पांव तक तुम बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन ये पेशानी पर काला निशान कैसे पड़ा हुआ है? ये काला निशान कैसे आ गया? क्या नबी नहीं जानते हैं ये काला निशान कैसे है? अब जनाब सफिया को मौका मिला, पहले ही फुर्सत में अली के फदाइल को पेश किया। कहा कि है नबी अकरम, जैसे ही आपके भाई ने आकर के कलाए खैबर को उखाड़ा है तो कलाए खैबर ऐसे ही नहीं उखाड़ा है, पहले अली ने हिलाया है। जैसे ही कला का खैबर हिला है, मेरा तख्त हिलने लगा और मैं तख्त से मुंह के बल जमीन पर आई। ये अली का दिया हुआ निशान है। नबी अकरम खुश होकर सुन रहे हैं कि मेरे अली ने पूरी दुनिया को सलवात भेजा। ये अली की ताकत है। बहरहाल इंशाअल्लाह तकरीर आपके जहन में रहेगी बचपन से लेकर के आखिर उम्र तक अली की शुरुआत क्या है। एक एक झरोखा से एक इशारा किया है और 77 जंगों में जो मौला कायनात ने भी शुजात को दिखाया वो अलग जगह पर है, अलग मकामात हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक इशारा दिया है कि बचपन की शुजात क्या है।
पैदाइशी तौर पर शुजात क्या है, और यकीनन इतनी शुजात पाने के बावजूद, इतनी ताकत पाने के बावजूद अगर कोई ऐसे सब्र कर रहा है तो अली का सब्र है। बस अजीज हो, यकीनन मेरे मौला ने कितना सब्र किया है। अल्लाह पर आज भी आप पुरसे के लिए आए हैं, कल भी आपने पुरसा दिया था, लेकिन आज पुरसे का ऐसा वक्त है कि पूरे कूफे में सन्नाटा मचा हुआ है। अल्लाह पर इमाम हसन कहीं पर बैठ के रो रहे हैं, इमाम हुसैन कहीं पर बैठ के रो रहे हैं। कितना चाहते थे अली, मालूम है अपने बेटों को कितना चाहते थे। ये तारीखी जुमला है और रिवायत में भी इशारा मिलता है, इसलिए कि तलवार पर इतना ज्यादा मलून ने जहर बुझाया था कि अली को जरूरत लगने के बाद मेरा मौला बार बार गशीतारी हो जाती थी, कभी बैठाए जाते थे, फिर अली लेट जाते थे, अली की ताकत घटती चली जा रही थी। लेकिन रिवायत का जुमला है कि जैसे ही रात होने लगी, जैसे ही सूरज डूबने लगा, नमाज की तैयारी हुई, अली को गशीतारी है। एक मतवा सारे फर्जंदों ने मिलकर तय किया, आज अली के साथ, अपने बाबा के साथ ऐसा इफ्तार किया जाए कि मेरा बाबा भी साथ में इफ्तार करे। अरे इफ्तार का सामान सजाया गया, सारे फर्जंदान आके बैठ गए। एक मतवा अली को खुशी से भागा हुआ, जैसे ही आँख खुलती है, एक मतवा देखा सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, उस पर इफ्तार के सामान लगे हुए हैं। आपने हाथ बढ़ा करके एक चौकी रोटी उठाई, हाँ आपका दिल भर आएगा। यकीनन आप यही पुरसे का मकाम है, कितना चाहते हैं अपने बच्चों को। अरे जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक लुकमा रोटी तोड़ी, कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा, बहुत बड़ा मजमा सामने, सारे फर्जंदान बैठे हुए हैं, सारे घर वाले बैठे हुए हैं। एक पर तो नजर उठा के देखा, हुसैन नजर नहीं आ रहे थे। बेटा हसन, मेरा छोटा बेटा हुसैन कहाँ है? एक मर्तबा हुसैन को बुलाया, अपने सानों के करीब बिठाया, एक लुकमा लिया, हुसैन के तहन को खोला। बेटा मुसलसल क्रिया कर रहे हो, लो अली के हाथ से इफ्तार कर लो। हाँ हाँ, बातें बुलंद हो जाए तो समझ जाना, अली की ज़ाका पसलियों को संभाले हुए, हाँ मेरा शावाली। एक मर्तबा हुसैन, अरे तहन नहीं खोल रहे हैं कि मेरा बाबा रुखसत का वक्त है। अरे हुसैन कैसे इफ्तार करें? अली ने कहा नहीं, तुम्हारा बाबा कह रहा हुसैन मुंह खोलो। अरे हुसैन ने तहन खोला, एक लुकमा तहन में रखा, फिर इमाम हसन ने पानी मांगा। अरे एक घूंट पानी पिलाने के बाद अली रोने लगे। न जाने अली के सामने कैसा मंजर है। अगर कोई सवाल कर लेता तो अली यही कहते, हाय मेरा करबला का प्यासा हुसैन, हाय करबला का भूखा हुसैन, हाँ दे दो। हालत बिगड़ती जा रही है, अली की हालत गैर होती जा रही है। कभी रश में आ जाते हैं, कभी रश से भागा हो जाता है। रात की तारीकी है, रात कटती चली जा रही है। एक मतवाली ने देखा आखिरी वक्त है, अपने हसन को बुलाया, बेटा हसन यकीनन अब मेरी हिचकियां आ रही है, अब मैं दुनिया से जाना चाह रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं दुनिया से जाऊंगा, अरे घर में कोहराम मच जाएगा। अब मेरे असहाब ने कहा तो वापस चले जाओ। हाँ दीदो, अब आप बुलंद कर, इमाम ज़माना को पुरसा देना है। अरे रसूल खुदा आइए, आपके भाई का पुरसा, सारे नबियों का पुरसा, सारे वलियों का पुरसा। अली की हालत गैर हो रही है। इमाम हसन ने मोहम्मद हनफिया को बुलाया, हाय मेरा बाबा आखिरी वक्त लग रहा है, अरे मोहम्मद क्या इस इलाके में कोई तबीब है? अरे मोहम्मद हनफिया ने कहा, हाँ भाईजान तबीब है, अभी मैं बुला के लाता हूँ। अरे जैसे ही तबीब आया, उसने एक तुम्बा ज़िबा किया। तुम्बा ज़िबा करने के बाद अरे तुमने की एक रग को मौला की पेशानी में अंदर जख्म में डाला। अरे जैसे ही निकाला, देखा रग फूल आई है। एक मतलब इमाम हसन ने कान में कहा कि हसन अपने बाबा से कहे तो जल्दी से वसीयत कर जाए, इसलिए कि जहर अंदर तक उतर चुका है। अरे इमाम हसन ने एक मतलब गौर से देखा तबीब को, कहा क्या कोई ऐसी बात है कि हमारे बाबा की जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाए? हाँ है, एक नुस्खा ऐसा है कि जैसे जिंदगी थोड़ा बढ़ सकती है और जहर का असर कम हो सकता है। इमाम हसन ने कहा